जनता पार्टी जो कोई डरती होय तो ये छे आम आदमी पार्टी थी डरे ये छे माननीय अरविंद केजरीवाल थी डरे छे एनी कट्टर ईमानदारी थी डरे छे। गुजरात ની અંદર માત્ર ને માત્ર જો કોઈ લોકસભાની સીટની ચર્ચા થતી હોય તો એ ભરૂચ અને ભાવનગરની ચર્ચા થાય છે। મિત્રો 100% આવનારી જે લોકસભાની ચૂંટણી છે એ લોકો જે 5 લાખની જે વાત કરી રહ્યા છે પણ ભાવનગર અને ભરૂચની સીટ એ તમારા ખંભા ઉપર લડી અને ઓછામાં ઓછા 2 લાખની લીડથી અમારી પાર્ટી જીતવાની છે। સાથોસાથ इंडिया गठबंधन एलायंसनी 2024 માં સરકાર હોવાની છે। આ પાક વિશ્વાસ રાખજો તમે। સરકાર બનતાની સાથે સૌથી પહેલું કામ इंडिया एलायंस આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે કે જેને ગુજરાતની અંદર નહીં પણ વિશ્વની અંદર જેને સૌથી મહત્વનું કામ કર્યું હોય ભારત દેશની એક અખંડતા માટે મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીએ આપણું ભાવનગર પ્રથમ રાજ્ય દેશના અખંડતા માટે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને સોંપી દીધું અને ત્યાર પછી देश आखो अखंड पड्यो तो एक कृष्ण कुमार सिंह महाराज ने आपणे आम आदमी पार्टी और इंडिया एलायंस एने भारत रत्न अपावीने जमशे। भारत माता की जय। તમે જો સૌથી જૂઠી પાર્ટી કોઈ હોય સૌથી જૂઠી પાર્ટી तो ये भाज છે। એમના હમણાં YouTube पर सर मुझे एक लोग यहाँ मिल गए थे बड़ौदा में, यहाँ तो आ रहा था तो जैसे गाड़ी से उतरा तो लोग मिले कि ईश्वर भाई अब ये बात नहीं कर रही है 2014 में कह रहे थे YouTube पे जो वीडियो है और गारंटी शब्द किसका है? मैं कहा आप बताओ तो वो तो अरविंद जी का है तो गारंटी चुरा रहे थे। गारंटी आप पूरी तो नहीं कर पाते। किसान आप देखो हालत तो ये है कि कल हमने देखा ये पूरे भारत को और वडोदरा वासियों को, भरूच वासियों को, भावनगर वासियों को, पूरे गुजरात को भी देखना चाहिए कि किसान दिल्ली पहुंच नहीं पाए। किसान दिल्ली पहुंच नहीं पाए। पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर जो किले लगाने चाहिए वो किले नहीं लगाए, वो किसानों के लगाए। लेकिन पाकिस्तानी एक चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या लाजवाब है। तो ये मुझे बड़ौदा वासी ने कहा। इसलिए हालत ये है कि वो बहुत डरते हैं और डरपोक लोग ये सब करते हैं। તમે બધા જાણો છો કે જે રીતના નેત્રંગમાં જાહેર સભા હતી અને જાન્યુઆરીની 7મી તારીખે માન્ય કેજરીવાલ સાહેબ અને માન સાહેબે નેત્રંગમાં જાહેરાત કરી દીધી કે ભરૂચ લોકસભા પરથી ચૈતરભાઈ વસાવા લડશે અને એ જાહેરાત કર્યા બાદ ઇન્ડિયા એલાયન્સમાંથી પણ એ સીટ જ્યારે મારા પર ભરોસો મૂકીને મને ત્યાં ઉમેદવારી કરવાની જ્યારે તક આપી છે ત્યારે આજે અમે ભરૂચ લોકસભામાં તમામ લોકો ખૂબ જ મહેનત કરી રહ્યા છે। હમણાં તમે બધાએ જોયું હશે હમણાં અમે સ્વાભિમાન યાત્રા કાઢીને ભરૂચ સંસદીય ક્ષેત્રના 306 જેટલા ગામોમાં અમે ફર્યા। 21 દિવસની યાત્રા હતી અને યાત્રા દરમિયાન એ 306 ગામોમાં અમે ગયા। તમામ વર્ગના લોકો, ત્યાંના ખેડૂતો, ત્યાંના યુવાનો અને માતા બહેનોએ ખૂબ સારો પ્રતિસાદ અમને આપ્યો છે। તમે જોયું હશે આખાને આખા ગામના લોકો એક એક કલાક ફૂલહાર લઈને અમારી રાહ જોતા હતા। તમામ લોકો વિશ્વાસ આપતા હતા, અમારી આરતી ઉતારીને સ્વાગત કરતા હતા। ત્યારે જે રીતે અમારા પર ભરોસો મૂકીને આમ આદમી પાર્ટી અને કેજરીવાલ સાહેબ, ભગવત માન સાહેબે જે અમને ઉમેદવાર તરીકે ભરૂચ લોકસભામાં જે તક આપી છે ત્યારે આજના આ કાર્યક્રમમાં હું એમને વિશ્વાસ આપું છું કે આ વખતે ભરૂચ લોકસભામાં અમે ખૂબ જ સારી રીતે મહેનત કરીશું અને ભરૂચ લોકસભા સીટ અમે મહેનત કરીશું। ભરૂચ લોકસભા સીટ આ વખતે આપણે જીતીએ છે, જીતીને માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબને
ત્યારે ત્યાંના મારા કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ પણ અમારી સાથે ખૂબ જ મહેનત કરે છે અને આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશના તમામ લોકો મને ત્યાં સપોર્ટ કરવા પણ બધા આવે છે ત્યારે એ લોકોની જે મહોમાં અમે નથી કે 5 લાખની લીડથી જીતીએ, પણ આજના કાર્યક્રમમાં ભરૂચ સીટની હું એટલી સુધી ખાતરી આપું છું કે ભરૂચ સીટ આપણે 50,000 લીડથી જીતીશું અને માનનીય કેજરીવાલ સાહેબને આપણે આપીશું। आपको ताजुब होगा, बड़ौदा की आपस की सीट जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट लड़ा था उसको रिजाइन करवाया, फिर से 10, 15, 20 करोड़ खर्च करवाने के लिए। बताओ क्यों? क्योंकि तुम विपक्ष, और उनको क्या जरूरत है? 3 इंडिपेंडेंट जीते हैं गुजरात के, मतलब भाजपा को चुनाव जीतना है बस, और चुनाव जीतने तो उनको लगेगा कि दाऊद इब्राहिम भी हमें काम करना आता है, तो यही भाजपा और दाऊद इब्राहिम को यहाँ लेकर चुनाव में घुमाएंगे, ऐसा लग रहा है। ये हालत है। पर मित्रों, अपना खूब ज જેની સ્પીચ થી ભાજપવાળા, જેના ટ્વીટ થી ભાજપવાળા હંમેશા ડરતા હોય છે। ગુજરાતીના પ્રતિષ્ઠિત કવિ ફૂલચંદભાઈ શાહની એક કવિતા છે, એમાં એવું કીધું છે કે ડંકો વાગ્યો લડવૈયા શુરા જાગજો રે, શુરા જાગજો રે, શુરા જાગજો રે। ડંકો વાગી ગયો છે ભારત દેશની અંદર લોકશાહી બચાવવા માટે। શુરાઓએ એને જાગવાનું છે। ચૂંટણીઓ ઘણી બધી વખત આવે છે, વારંવાર આપણે નહીં હોઈએ તોય ચૂંટણીઓ આવશે, આપણા જન્મ પહેલા ચૂંટણીઓ આવી, પણ આ 2000ની લોકસભા જેવી ચૂંટણી હજારો વર્ષો પછી ક્યારેક જ આવતી હોય છે કે જ્યારે ચૂંટણી કોઈ પાર્ટી કે કોઈ નેતાને નહીં દેશને જીતાડવા માટે લડાતી હોય છે। એવો સમય ક્યારેક જ આવે। નેતાઓને જીતાડવાની ચૂંટણીઓ ઘણી આવશે, પાર્ટીને જીતાડવાની ચૂંટણીઓ ઘણી આવશે। ભારતને બચાવવા માટેની, ભારતની અંદર લોકશાહી બચાવવા માટેની અને લોકશાહીની અંદર પણ બંધારણીય સંસ્થાઓ બચાવવાની આ ચૂંટણી આવી છે। એટલે એમ કહેવાનું છે લડવૈયા શુરા જાગજો, ડંકો વાગ્યો છે। હવે આપણી સૌની જવાબદારી બને છે કે આપણે આ ચૂંટણીની અંદર આપણું સર્વસ્વ હોમી દઈએ અને આમ આદમી પાર્ટીને ઇન્ડિયા ગઠબંધનને જીતાડવા માટે થઈ અને પૂરો આપણે બલિદાન આપીએ, ત્યાગ આપીએ। મહાભારતની અંદર પહેલા શ્લોકની અંદર ધૃતરાષ્ટ્ર જે સંજયને પૂછે કે ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયોત્સવ મામકાસ્ત્ર પાંડવાસ્ત્ર કિમ કુર્વત સંજય। એટલે એમ પૂછે છે કે યુદ્ધના મેદાનમાં, ધર્મ ક્ષેત્રની અંદર, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં યુદ્ધ કરવા માટે ઉત્સુક મારા અને પાંડવોના બાળકો શું કરે છે? મને રિપોર્ટ આપો, મને બતાવો। સંજય એવું પૂછે। એક બાજુ કૌરવોની અક્ષોની સેના છે, વણવણતા ઘોડાઓ છે, રથ છે, તીર ભાલા, આધુનિક શસ્ત્રો, દુનિયાભરની સેના ઊભી છે। એક વખત ઓર્ડર છૂટે અને આમ ખેદાન મેદાન કરી નાખતી સેના ઊભી છે। એક બાજુ ઈમાનદારીથી, નિષ્ઠાથી, સત્ય સાથે લઈને ઉભેલા 5 પાંડવો છે અને 5 પાંડવો સાથે ઈશ્વર તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે ઉભા છે। આપણી સાથે એવું છે કે એક બાજુ ભાજપની ઈડીની સેના, સીબીઆઈની સેના, એસબીઆઈ, એના પાસે પોલીસ, સરકાર, ડેપ્યુટી કલેક્ટર, મામલતદારો, ગુંડાઓ, બુટલેગરો, કોન્ટ્રાક્ટરો, માફિયાઓ, હજારો લોકો એની સામે ઉભા છે। અને એક બાજુ અરવિંદ કેજરીવાલ, ભગવત માન, આપણા જેવા નાના નાના સૈનિકો ઉભા છે અને આપણી સાથે સત્ય છે, આપણી સાથે ઈશ્વર છે। લડાઈ ભીષણ થવાની, આસાન લડાઈ નથી અને આસાન નથી એટલે જ આપણે લડવાની છે દોસ્તો। આસાન તો કોઈ નથી, આપણે તો એટલે લડવી છે કે આ ભીષણ લડાઈની અંદર ભીડાઈ જવું છે, નામ લખાવવું છે ઇતિહાસની અંદર કે આમ આદમી પાર્ટી વાળા લડ્યા અને ગુજરાતમાંથી 2 સીટો લગાવીને દિલ્હીની અંદર। ઘણી વખત આગ લાગે, આપણે જોયું છે, જેમ કે વડોદરા હરણીની અંદર બોટ દુર્ઘટના બની, મોરબીમાં કોઈ દુર્ઘટના બની, એની પહેલા તક્ષશિલામાં આગ લાગી, એની પહેલા ક્યાંક બીજે આગ લાગી, અથવા ક્યાંક પૂર આવે, અથવા ક્યાંક કોઈ હોનારત થાય, તો 2 પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવે કે એ આગ જ્યારે લાગી ત્યાં આજુબાજુમાં જે ઊભા હતા એમાંથી ભાગ્યા કેટલા અને અંદર કૂદીને જીવ બચાવવાની કોશિશ કોણે કરી। 2 પ્રકારની ઘટના સમાજની સામે આવે। આ દેશની અંદર આગ લાગી છે તાનાશાહીની, ભ્રષ્ટાચારની, દાદાગીરીની। આપણું નામ ભાગી જવા વાળામાં લખાવું છે કે કૂદીને બચાવવા વાળામાં લખાવું છે? આપણા બધા નામ આપણે જોઈએ કે જ્યારે કોઈ ઘટના બને એટલે ફોટો આવે કે ઢેકણા ભાઈએ કૂદ્યા અને 4 છોકરાનો જીવ બચાવ્યો, એનો વિડિયો આપણે બધા જ વાયરલ કરીએ। વાત સાચી છે કે ખોટી? જે કૂદી જાય એનો ફોટો આપણે વાયરલ કરીએ, આખી દુનિયાને બતાવે કે અહીંયા આગ લાગી, કે અહીંયા દુર્ઘટના બની, કે અહીંયા પૂર આવ્યું, તો ફલાણા ભાઈએ પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકીને 4 બાળકો બચાવી લીધા। કેટલાક લોકો પાર્ટી છોડીને ભાગે છે,
કાંઈ વાંધો નહીં, ભગવાન એમને સુખી રાખે, 100 વર્ષ ના કરે. પણ આપણે આગ લાગી હોય ભાગવા વાળા ની એની અંદર કૂદી જવા વાળા, યા તો આપણે હોમાઈ જાય, યા તો ચારનો જીવ બચાવી એવા માણસો છે. એટલે બધાને મારી વિનંતી છે કે ઠીક છે, આપણે બેઠા છીએ, ખુશ છીએ, આપણા નેતા બેઠા છે, તાલી પાડીએ, પણ આ હોલમાંથી આ મીટિંગમાં આ સભા પૂરી થાય પછી આપણી જવાબદારી ચાલુ થાય છે. તો હવે ઘરે નથી જવાનું. થેલો લઈ અને ચૈતરભાઈ અથવા ઉમેશભાઈ અથવા પાર્ટી જ્યાં જવાબદારી સોંપે ત્યાં આવતો 1 મહિનો, કેમ કે કાલથી તો છૂટી જાહેર થઈ જવાનું છે. થેલો લઈ અને મતદાનના દિવસ સુધી આપણે રહી જવાનું છે જ્યાં આપણને જવાબદારી મળે. તો આપણે માનીશું કે સાચા યોદ્ધા થઈને આપણે આગમાં આ આપણી પરીક્ષાનો સમય છે. મેં કીધું એમ, નેતાને જીતાડવાની, પાર્ટીને જીતાડવાની ચૂંટણીઓ 100 આવશે. આ ભારતને જીતાડવાની ચૂંટણી આપણે બાળકોને કહી શકશું કે અમારા સમયમાં તો એવી ચૂંટણી આવેલી, કરો યા ભરોની કરાઈ હતી, અને એમાં તમારા દાદા કે તમારા બાપા જે આગળ કરતા હતા એવું કહી શકશું આપણે. આપણને એની ખુશી થશે, ગર્વ થશે. એટલે બધાને મારી વિનંતી કે આપણે બધાએ પૂરી તાકાતથી આ ચૂંટણીની અંદર ઝંપલાવીએ. આપણને ઉમેદવાર તરીકે ભાઈ શ્રી ચૈતરભાઈ ઉમેશભાઈ બહુ સરસ માણસ મળ્યા છે. સમાજમાં આપણે જોઈએ કે ભાજપ વાળા ધમકી મારવાનું છોડો, ધમકી તો એનો ધંધો છે, પણ ભૂલથી ખોટું કોઈ ધારાસભ્યના ખભે હાથ મૂકી દે તો બોલો બી જાય, જેમ કે હું પાર્ટી જોઈન કરી લઈશ, મને કઈ કરતા નહીં. એટલો બધો ડરનો માહોલ છે. એવા સમયમાં ચૈતરભાઈ જેવો માણસ 1 મહિનો જેલમાં રહીને આવ્યો તો હજી આપણે તો ફિલ્મમાં ઝૂકેગા નહીં, આ રિયલ માણસ છે. ઝૂકેગા ફિલ્મમાં તો શું છે, એને કીધું હોય તારા ઝૂકેગા નહીં નો ડાયલોગ બોલવાનો છે એટલે બોલી નાખે. રિયલ લાઈફમાં એ ઝૂકી જાય, ભાજપ વાળા ધોકો પછાડે. અસલ ઝૂકેગા નહીં જો કોઈ હોય તો ચૈતરભાઈ વસાવાય બેઠા જેલમાં. એટલે આપણે એમ કહીએ કે ગમે એવી મોટી ઈડી સીબીઆઈ સેના આવે, આપણી પાસે આપણા દિલમાં સત્ય છે, આપણા વિચારોમાં પ્રમાણિકતા છે, અને આપણા નેતા અરવિંદ કેજરીવાલ છે કે આ લડાઈ આપણે જીતવાની છે. અને મહાભારતની છેલ્લી વાતની પૂરી કરીએ કે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું, એક બાજુ આ બધી હજારોની સેના ઉભી, એક બાજુ નાનો રથ લઈને અર્જુન ઉભેલા, એટલે એમ કહ્યું કે ભાઈ આટલા બધા માણસોને કેવી રીતે પકડીશું? ભાજપ વાળા આપણા કાર્યકર્તાનું મનોબળ તોડવા માટે એમ કહે કે ભાઈ તમારી પાર્ટી પતી ગઈ, તમારી પાર્ટીમાં ફલાણા ભાઈ વયા ગયા, હવે કાંઈ થશે નહીં, ઓલા ભાઈ ઘરે બેસી ગયા, પેલા ભાઈ ઉપર બેસી ગયા. આવી રીતે આપણું મનોબળ તોડવાની કોશિશ કરવામાં આવે. અર્જુનની હાલત એવી હતી મહાભારતના મેદાનમાં, કુરુક્ષેત્રના, એને એમ થતું હતું કે પહોંચી શકાય કે નહીં પહોંચી શકાય. અમારા બેટા કૌરવો તો બધું મોટું લઈને આવ્યા. એ વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એને કીધું કે હતોવા પ્રાતસ્સી સ્વર્ગમ જીત્વા વા ભોક્ષસે મહિમ તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ હે કંતે યુદ્ધાય કૃતનિશ્ચય. એણે એમ કીધું કે આ યુદ્ધના મેદાનમાં મરી જાય તો સ્વર્ગ મળશે, લડવા બદલ, બલિદાન આપવા બદલ તને સ્વર્ગમાં સ્થાન મળશે. યુદ્ધને જીતી જાય તો આ દુનિયાના તમામ ભોગ ભોગવવા મળશે. માટે હે અર્જુન, યુદ્ધનો નિશ્ચય કર, ઊભો થઈને લડવાનું ચાલુ કર. આપણા માટે એ પરિસ્થિતિ છે કે આ યુદ્ધમાં જીતી જઈશું તો ભારતનું ભાગ્ય બદલવાની તક આપણને અરવિંદ કેજરીવાલજીને ભગવંત માન સાહેબને મળશે. કદાચ નહીં જીતીએ તો બાળકોને કહેવા લાગે તમારો બાપો કોલ ઊંચા રાખીને લડતો હતો, કાંઈ વાંધો નહીં. આપણા માટે કરોયા મરોની લડાઈ છે. એવા સમયે માનનીય ભગવંત માન સાહેબ, માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણો ઉર્જા વધારવા, આપણો ઉત્સાહ વધારવા માટે આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આપ સૌ અરવિંદ કેજરીવાલજીના બાહોશ સૈનિકોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, અભિનંદન કરું છું, અને આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે આ યુદ્ધની અંદર ઝંપલાવી દેવાનું છે અને જીતીને બતાવવાનું છે દોસ્તો. એટલે સામે કોઈ હોય નહીં, એનો વિરોધ કરે નહીં, એનું આખું ષડયંત્ર છે મિત્રો. ભૂલથી પણ 2024 પછીનો જે ભારત હશે, કારણ કે આઝાદી મેળવવા માટે બહુ સમય લાગ્યો છે. શહીદ ભગતસિંહ જેવા કેટલા લોકોએ બલિદાનો આપ્યા ને, ત્યારે અંગ્રેજોમાંથી આપણે છોડાવી શક્યા છીએ. આ ભાજપ બીજી દેશી અંગ્રેજ છે, અને એના હાથમાં જો કાયમી વયું ગયું તો આ વન નેશન તો ફરીથી આપણામાં તાકાત નથી, 200 વર્ષ સુધી આપણે છોડાઈશું. આ સ્થિતિ છે. એટલે ઘણા લોકો લાલચમાં પડતા નહીં. આ બધી વાતો એટલા માટે મારે કહેવી પડે છે કે અત્યારે બકરી ડબ્બા પૂરવામાં હાલે છે ત્યારે. એટલે पार्टी ऐसे आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। आप केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कहां गिरफ्तार करोगे, कैसे गिरफ्तार? जो 10-13 साल में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कौन सी जेल में डालोगे? ये गलतफहमी में है। कैसे हम उनको रोक लेंगे? हम वो पत्ते नहीं
जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो चेतर भाई वसावा जैसे हमारे, उमेश भाई जैसे हमारे फाइटर हैं, यशोदान भाई, गोपाल भाई हमारे फाइटर हैं। हम लोग अपने अपने काम, जैसा कि यशोदान भाई बोल रहे थे, अपने अपने काम छोड़ के आए। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, इनकी पत्नी इनकम टैक्स कमिश्नर, दोनों मियां बीवी इनकम टैक्स के कमिश्नर। चाहते तो ये भी करोड़ों कमा लेते, हर रोज घर पे लाखों रुपए आ जाते, लेकिन उन नौकरियों को छोड़कर जनता के पक्ष में, जनता के हक में खड़े हुए। क्या जरूरत थी इतनी आलोचना करवाने की? जब ये इनसे हर रोज गालियां सुबह सुबह उठ के केजरीवाल करने लगते हैं। मैं आर्टिस्ट था, बड़ी डॉक्टर चैनल से लेकर वो वहां तक पंजाबी में तो बहुत पहले से 17.5 साल का था, तब से स्टार बन गया। तो क्या जरूरत थी इनसे गालियां खाने की? सुबह सुबह लगते हैं भगवान मान को गाली देने लगते हैं। तो सब लोग अपने अपनी जगह से थे। अगर ये अच्छे निकल आते ना, हमें क्या जरूरत थी? ये निकम्मे निकले, इसीलिए हमें आना पड़ा। और हम काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। 2 साल हो जाएंगे कल, 16 मार्च है कल। 16 मार्च 2022 को शपथ ली थी पंजाब में। और शपथ आमतौर पर कहां होती है? शपथ राजभवन में होती है, जब मुख्यमंत्री अपने निवास पे करवाता है, जब फिर किसी स्टेडियम में होती है। पंजाब की जो शपथ ग्रहण समारोह था वो कहां हुआ था? भगत सिंह के पैतृक गांव में हुआ था। उनकी सोच को, उनकी कुर्बानी को सजदा करने के लिए। दिसंबर 2022 में गुजरात का चुनाव हुआ था, गुजरात विधानसभा का, 1.25 साल पहले आज से। मुझे याद है जब 2 साल पहले हम गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए पूरे जोर शोर से आए थे, तो सब लोग कहते थे आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो 2 ही पार्टी चलती है। ऐतिहासिक तौर पे इतने सालों से 2 ही पार्टी है, बस तीसरी पार्टी का यहाँ कोई स्कोप नहीं। और अचानक ये तीसरी पार्टी आई और पहली बार में ही 14% वोट। गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वो कहते हैं ना कि शेर की मुंह में हाथ डाल के, शेर की मांग के अंदर घुस के 14% वोट हम लेके आए थे। 5 MLA 14% वोट। तो ये एक तो गलत फहमी हम लोगों ने तोड़ी कि गुजरात में 2 ही पार्टी चलती है, गुजरात के अंदर तीसरी पार्टी भी चलती है। और एक नई पार्टी को, आम आदमी पार्टी को पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, इतना प्यार मिला पूरे गुजरात में। टाइम कम था, इसलिए बहुत ज्यादा प्रचार नहीं कर पाए, अपनी बात नहीं रख पाए, कोने कोने में नहीं पहुंच पाए, संसाधनों की कमी है। तो इसीलिए 14% वोट और 5 MLA मुझे लगता है बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी के लिए जीत है। जितनी ईमानदारी और शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी लगी हुई है और काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, जनता के मुद्दों के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके परिवार के इलाज के लिए, आपकी सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, कोई पार्टी बकराव नहीं करती। कोई पार्टी, यहाँ पे 156 सीट आई है गुजरात में, 156 सीट दी लोगों ने बीजेपी को। और क्या देंगे इससे फालतू, क्या प्यार देंगे लोग? मैं देख रहा हूँ 1.25 साल में एक धेले भर का काम नहीं किया 156 सीट आने के बाद। उससे थोड़े दिन पहले हमारी पंजाब में सरकार आई है, पंजाब में इतने काम हो रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं पंजाब के अंदर, अभी मान साहब भी ला रहे थे। और ये क्या 156 आ गए, अभी भी दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपने में ला रहे हैं, अभी भी दूसरी पार्टियों के MLA तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। तो ये काम करने, एक ही पार्टी है आज देश के अंदर जो देश के लिए काम कर रही है, भविष्य के लिए काम कर रही है। और मेरा दिल कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस देश को भाजपा से मुक्ति आम आदमी पार्टी की है। जब आम आदमी पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि एक छोटा सा नन्हा सा पौधा जो 2012 में शुरू हुआ था, वो बढ़ते 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 राष्ट्र पार्टी कब बनी और किसने बनाई? तो गुजरात का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा, गुजरात के लोगों ने बनाई, गुजरात के लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्र के ऊपर, मानचित्र के ऊपर खड़ा किया।
पिछले दो चुनाव से 2014 और 2019 दो चुनाव से आप 26 की 26 सीट भाजपा को देते आ रहे हो। क्या मिला आपको? भाजपा को 26 की 26 सीट दी। इन 26 लोगों ने आपके लिए कोई काम किया? एक भी काम किया? क्या मिला आप लोगों को? इतनी समस्याएं आई आपकी, इतनी समस्याएं आई, पेपर लीक हुए, इतने पेपर लीक हुए और फिर पेपर लीक हो रहे हैं। एक भी बार एक भी सांसद ने, एक भी एमपी ने संसद में आपकी आवाज उठाई? कितनी बार शराब घोटाले हुए, यहां पे शराब की वजह से कितने लोग मारे गए? एक भी सांसद ने आपकी आवाज, कहां थे वो लोग जब आपके यहाँ पे शराब घोटाला हो रहा था और शराब की वजह से, नकली शराब की वजह से यहाँ पे लोग मर रहे थे? कहां थे आपके 26 के 26 सांसद? घर में बैठ के सो रहे थे। कहां थे आपके 26 के 26 सांसद जब आपके बच्चों की परीक्षाएं लीक हो रही थी? कहां थे आपके 26 सांसद घर में बैठ के सो रहे थे? जब आपके बच्चे बेरोजगार बच्चे सड़क के ऊपर रोजगार के लिए धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठियां चलाती है, कहां आपके 26 सांसद कहां रहते हैं? घर के अंदर सो रहे होते हैं। क्या फायदा ऐसे 26 सांसदों को चुनने का? क्या फायदा ऐसे 26 सांसदों को चुनने का? हमें क्या मिलता है कि ऐसे सांसदों, कहां थे ये लोग? आज मैं गुजरात के लोगों को यही कहने के आया हूं, आप 26 उनके देते हो, इस बार एक बार 2 मेरे दे के देख लो। अभी तक भाजपा का माल ट्राई करके देख लिया, इस बार मेरा माल ट्राई करके देख लो। मेरे 2 जिता के देख लो। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी मान साहब कह रहे थे, एक दिन नहीं बीतेगा जब लोकसभा के अंदर गुजरात की आवाज नहीं उठाई जाएगी, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। फिर खबरदार अगर गुजरात के अंदर शराब की, नकली शराब दोबारा अगर बनी तो खबरदार। अगर आपके बच्चे के पेपर लीक हुए तो, अगर आपके बच्चों के गुजरात में पेपर लीक होंगे, पूरे देश के अंदर आपकी आवाज गूंजेगी, पूरे देश को पता चलेगा। अगर यहाँ पे दोबारा नकली शराबी के मोरबी ब्रिज दोबारा अगर टूटेगा, पूरे देश के अंदर उसकी गूंज उठेगी, फिर ये चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। एक बार आप हमें ट्राई करके देख लो। अभी मैं देख रहा था, अभी CR पाटिल साहब कोई कहीं किसी गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे। कहां पे? यहीं वडोदरा में। हाँ, खटंबा गांव में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस का उद्घाटन करने गए थे। वहां एक सरपंच खड़े हुए और सरपंच ने बोला कि साहब हमारे यहाँ पे स्कूल नहीं है। पूरे देश के अंदर इनके 5 स्टार दफ्तर बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्कूल नहीं बन रहे पूरे देश के अंदर। दिल्ली में स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का दफ्तर नहीं है दिल्ली के अंदर। 30 साल गुजरात में राज करने के बाद अगर वहां पे अगर जनता से एक आदमी अगर खड़ा होकर कहे कि साहब आपका दफ्तर बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, एक स्कूल भी बनवा दीजिए, तो शर्म से डूब मरने की बात है। इन्होंने किया क्या 30 साल के अंदर? हमने अगर 2 साल में पंजाब में इतने स्कूल बनवा दिए, 2 साल में, केवल 2 साल में। 10 साल में दिल्ली के अंदर गांव घर घर के मतलब मोहल्ले मोहल्ले के अंदर स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए। ये लोग नहीं कर सकते, कभी करेंगे नहीं, इनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की आपके लिए। केवल सत्ता चाहिए, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। चैतर भाई मेरी नजरों में बहुत बड़े हीरो हैं और मुझे बेहद गर्व है कि चैतर भाई हमारी पार्टी में है। आज के दौर में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो दूसरों के लिए जेल जाते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इनको गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इनके इलाके के अंदर गरीब किसानों की जमीनें छीन रहे थे। यही था ना मामला, जमीनें छीन रहे थे। इन्होंने बीच में पड़ के उनको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को रोका, किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलवाई और यही केस करके इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया।
हद तो तब हो गई, बीजेपी वाले इतने गिर गए। अरे तुम्हारी लड़ाई तो चैतर से है, चैतर को नहीं उनकी वाइफ को भी पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। इतना गंदा, और कौन होता है इतना गंदा? अरे तुम्हारी लड़ाई उनसे, उनकी वाइफ को तो छोड़ दो, कम से कम बख्श दो, परिवार को तो बख्श दो कम से कम। इतने गंदे लोग हैं। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था चैतर को तोड़ना। उसके पहले भी साल भर से चैतर के चक्कर लगा रहे थे, बहुत दिनों से, चैतर तू आ जा हमारी पार्टी में, तू आ जा। वो यही करते हैं, इतने करोड़ रुपए ले ले, तू आ जा हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में। क्या जब वो नहीं टूटा चैतर तो उसको गिरफ्तार कर लिया। जेल में इतनी बार बीजेपी वाले मिलने के लिए गए, आ जा, कब तक जेल में रहेगा, ये करेगा, वो कब तक। हम दोनों मिलने गए थे, मैं और भगवंत मान दिल्ली से आए थे, हम दोनों मिलने के लिए गए थे चैतर भाई से और उनकी वाइफ से जेल के अंदर। चैतर नहीं टूटा, उनकी वाइफ भी नहीं टूटी। चैतर तो चलो राजनीति के अंदर है, राजनीति में ये चलता रहता है। जब उनकी वाइफ से हम जेल में मिले तो उनकी वाइफ के चेहरे पे भी मुस्कान थी। हमें लगा वो नाराज होंगी, हमसे गुस्सा होंगी। हम दोनों आए हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग, हमारा तो परिवार बर्बाद हो गया। ये नहीं, वो भी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा के उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पे ठीक हैं। मतलब सलाम करता हूं मैं इनकी वाइफ को। आज ये दोनों वापस आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि भरूच सीट से वहां के लोग इनको भारी बहुमत से जिता के, ऐतिहासिक बहुमत से जिता के भेजेंगे। उन्होंने, मैं सुन रहा था कि बोला 50,000 नहीं, ऐतिहासिक बहुमत से जीत होनी चाहिए चैतर भाई की। मैं ये भी कहना चाहता हूं, वहां पे इनके खिलाफ बीजेपी ने मनसुख भाई को दोबारा टिकट दिया। मनसुख भाई अब बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायर। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, मुझे पता चला बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। उनका इस्तीफा नहीं लिया उन लोगों ने। तो आप, चैतर युवा है, वो आपके लिए काम करता है, आपके लिए जुझारू आदमी है, रात दिन आपके लिए काम करता है। मनसुख भाई को तो 30 साल हो गए, 30 साल से अब बहुत होते हैं 30 साल। अब नया आदमी ट्राई करो ना, उसको छोड़ो, अब नया आदमी ट्राई करो। तो मैं भरूच की जनता से यही अपील करता हूँ ना, पूरे भरूच के अंदर गरीब इलाका है, आदिवासी लोग हैं और इन लोगों को, आदिवासियों से नफरत है बीजेपी वालों को। हेमंत सोरेन के साथ बताओ क्या किया, मैंने पूरा केस स्टडी किया। हेमंत सोरेन बिल्कुल निर्दोष हैं। क्यों उसको पकड़ के डाला? आदिवासी है इसलिए उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। सबसे बड़ा आदिवासी, अकेला आदिवासी मुख्यमंत्री है पूरे देश के अंदर, उसको पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया। तो नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से। आज पूरे आदिवासी क्षेत्र जितना भी है गुजरात के अंदर, उसको सबसे पिछड़ा क्षेत्र बीजेपी वालों ने रखा हुआ। 30 साल में बाकी जगह थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया हो, लेकिन गुजरात के आदिवासी क्षेत्र के अंदर कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, कोई रास्ते नहीं बनाए, कुछ नहीं। केवल जितना पैसा आदिवासियों का आता है वो सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपील है पूरे आदिवासी क्षेत्र से, इस बार अपने बेटे को, चैतर को जिता के भेजिए। हमारे भावनगर से हमारे उम्मीदवार उमेश भाई, मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोगों को पता है कि विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले उमेश भाई के ऊपर बीजेपी वालों ने जानलेवा हमला किया था। वो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप भी डर जाएंगे। अस्पताल की इनकी तस्वीरें, इतना मारा था, रॉड से मारा था इनको, इनके पैर टूट गए थे। एक बार तो लगा था कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन वो वहां से निकल के आए हैं। और किस लिए, वो भी कह रहे थे कि तू भी आम आदमी पार्टी छोड़ के आ जा, आम आदमी पार्टी। मुझे कई बार मेरे पूरी वो होती है शरीर के अंदर, जब मैं सोचता हूँ कि चैतर जैसे, उमेश भाई जैसे कार्यकर्ता हमारी पार्टी के अंदर हैं, जो कि अपनी जान की बाजी लगाते हुए पार्टी नहीं छोड़ रहे, लेकिन हमारे साथ कोली समाज से आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भावनगर की जनता भी इनको भारी बहुमत से जिता के भेजेगी। तो ये 2 सीट आज मैं मांगने के लिए आया हूं गुजरात के लोगों से। और मैं पिछले साल पंजाब के अंदर जालंधर की सीट खाली हुई, एमपी की, सांसद की। हम जालंधर गए, मैं और मान साहब, और हमने कहा 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव है, ये सीट हमें दे दो,
एक साल में हम इतना काम कर देंगे कि अगली साल आपके पास आएंगे, अगर काम पसंद आए तो वोट देना। अब इतना बढ़िया माहौल है पूरे पंजाब में, देखना 13 की 13 सीटें जीतेंगे। आज यही मैं गुजरात में कह के जा रहा हूँ, आपने हमारे 4 एमएलए दिए, मैं चारों से बात करता रहता हूँ। एक एमएलए धोखा देके चला गया, 5 एमएलए थे, मैं चारों से बात करता हूँ, इतना अच्छा काम कर रहे हैं चारों। आप ये 2 एमपी हमारे जिता दीजिए, ये इतना शानदार काम करेंगे। एक तरफ आपकी आवाज उठाएंगे लोकसभा के अंदर और दूसरी तरफ आपके इलाके का विकास करेंगे, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, आपके इलाके का विकास करेंगे। अगर इन दोनों का काम पसंद नहीं आए, 2027 के विधानसभा चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ये बीजेपी वाले पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही है, हमारी तो 370 आ रही है। वो ये कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे वोट, तुम अपना घर बैठो, तुम्हें वोट देना है दो, नहीं देना है मत दो, हमें नहीं चाहिए तुम लोगों का वोट। तो ऐसे लोगों को वोट देने से क्या फायदा जो कह रहे हैं हमें उनका वोट नहीं चाहिए। वो पता नहीं कहां से ला रहे हैं 370, कह रहे हैं 370, लाने दो उनको। मेरे को वोट चाहिए आपके, मैं आपके सामने झोली फैला के आपके वोट मांगने के लिए दिल्ली से आया हूं। मेरे को भी चाहिए, चैतर भाई को भी चाहिए, उमेश भाई को भी चाहिए, भगवंत मान, हमें आपके वोट चाहिए। हम आपको अपना भगवान मानते हैं, हम आपको अपना मालिक मानते हैं, हम सेवक हैं आपके। हमें गुजरात की जनता के वोट चाहिए, तो आप हमें वोट दो ना। जिसको वोट चाहिए, जो वोट मांग रहा है उसको वोट दो। जिसको वोट नहीं चाहिए वो कह रहा है मेरी तो 370 आ रही है, जाने दो उनको, बोलो ले लो 370, जहां से लेनी है ले लो 370। हमें वोट चाहिए, हमें वोट दो। तो एक मौका और आप हमें दीजिए, एक मौका देके देखिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को, एक बार आप 2 एमपी जिता दीजिए, 2027 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर, और फिर कोई इसको हिला नहीं पाएगा।